whenever you make an audit opinion or whenever as an auditor you are forming an opinion, आपको कुछ specific evaluation करने पड़ते हैं. Go back into your notes and find out as a 700 specific evaluation while forming an opinion in the audit report. और मैंने क्लास में रेगुलर क्लास में 700 सेपरेटली नहीं करवाया था, तो यू गाइस फाइंड इट फ्रॉम योर आईसीआई मटेरियल गाइस, है ना. Specific evaluation, but it's a easy topic, but you have to find it. Specific evaluation. The auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework. Explain stating clearly the specific evaluation to be made by the auditor. मैम यही है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर राइट. सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब आप ओपिनियन बनाते हो ना, तो ओपिनियन कैसे बनाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राड़ा है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या नहीं है. बट मिस स्टेटमेंट तो एक सिंगल लाइन का आंसर हो गया ना, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मिस स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट किस तरह का है वो तो देखना पड़ेगा ना. तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक इवेल्युएशंस करने पड़ते हैं, राइट. Now I take your name and you give me one like specific evaluation का एक पॉइंट दो और एक्सप्लेन करो क्विकली कि क्या इवेल्युएशन करोगे. ठीक है. सो अथर्व ने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट? अथर्व, कैन यू एक्सप्लेन? आई विल राइट इट डाउन. एक सेकंड सॉरी. द ऑडिटर शेल इवेल्युएट वेदर फर्स्ट, हाँ, whether the financial statements adequately disclose the accounting policies applied by the selected and applied the accounting policies, the significant accounting policies selected and applied by एंटिटी ने जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है सिलेक्ट की है, अप्लाई की है, क्या उसको डिस्क्लोज किया या नहीं किया ना. अथर, कैन यू टेल मी ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से करेगी वो एंटिटी? अकाउंटिंग पॉलिसीज का AS1 के हिसाब से, राइट. सो रिमेंबर दिस फ्रॉम AS1 एंड आपने क्या बोला? शेड्यूल 3. Perfect. So schedule 3 also requires you to summarize the significant accounting policy applied and AS1 भी वही बोलता है एंटिटी को. ठीक है. So आप ये evaluate करोगे. Now next, Meera, can you tell me the next one? What exactly related to accounting policy ही? हाँ, क्या क्या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या कि AS1 मतलब आंसर के साथ, मतलब एंड में कि ब्रैकेट में as per AS1? yes you can write as per AS1 and schedule 3. yes, बिल्कुल. ठीक है. मैं मीरा, रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसी आपको एक और चीज इवेल्युएट करनी पड़ती है. व्हाट इज दैट? Accounting policies selected and applied are consistent with the applicable FRA and appropriate. करेक्ट. सो कंसिस्टेंट होना चाहिए. हाँ, सॉरी, AS नुसार किंवा IND-AS लागतात त्यानुसार मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द. अरे बहुत मराठी बच्चे हैं यार क्लास में. आई एम सो ग्लैड. सो शी जस्ट एक्सप्लेन द होल कंसेप्ट इन मराठी व्हिच वाज फाइन फॉर अथर्व एंड गांधी एंड देवांशु. अपने पास बहुत मराठी इस क्लास में ना बहुत डोमिनेंस है पता मराठी बच्चों का. मुझे आदत है ना मराठी सो राइट. गुड. So the accounting policies. Abhi, what is your native language? What can I say? There are two actually. Is it from mom and dad side? ऐसा है क्या? Yeah, ma'am. Actually, I was brought up in Tamil Nadu actually. Okay. So you learned Tamil because of that, but you are originally from? Originally from Kerala, so I have Malayalam. So you Malayalam and okay, Tamil. So basically, Sharini also speaks Tamil, and there is a new guy Krishna in that English wala batch, so he also speaks Tamil. So we have Tamil. Now I'm in the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Acha, okay. So I know a little bit Telugu also. Good going. So basically, only Kannadiga is left, right? Yeah. That you learn. Telugu and Kannada are more or less similar only. Yeah, marry a girl who is Kannadiga then. And you will cover all aspect of it.
चलो द and you studied in Delhi, so that's because you Yeah, know in Hindi. college. Yeah, I My know. goodness. So Great. basically, you know 5 languages. Yeah, as of now. He may say he knows German also because he took German 11th and 12th, whatever. We'll believe whatever Abhi says Yes, now. ma'am. Yeah? Abhi, you do No, German I also? did not take any foreign language as a second language. Okay, okay. Acha, acha. Because in Maharashtra, they get the option of taking German, French, and all of that. In my hometown, there was only Hindi and English, and we could only speak Hindi because अब हमारे teachers को भी English नहीं आता था केवी में. ठीक है, so Devanshu will relate to it. पता है केंद्रीय विद्यालय those school teachers को भी English नहीं आता है ढंग से. पता है इसके लिए until 12th I did not know how to speak in English properly. Oh my God, my insecurities were so high because of that. मैम एक चीज और होता है हाँ. कि मैम पूरे महीने मैंने में जब बस मैम और एक दिन ऐसा होता है कि मैम जितनी इंग्लिश बोलना होता है और मैम कोई नहीं बोलता है उस दिन Exactly, the accounting policies selected and applied are किसी बच्चे ने कुछ कमेंट भी किया है consistent with the AFRF are appropriate. ठीक है, AFRF के हिसाब से जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है, अप्लाई की गई है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो चेक करने का. राइट. सो मीरा हो गया, अथर्व हो गया. नाउ प्रिया विल टेल मी द नेक्स्ट वन. व्हाट एल्स यू विल इवैल्यूएट? Management's accounting estimates are reasonable. Right. Give me example of one accounting estimate that management makes. Useful life of the asset. Just useful life of the asset is also an accounting estimate basis on the basis of which management will decide कि depreciation कितना लेना है, calculate करेगा. Right. Provision for gratuity के लिए जो provisions लेना, that is also an accounting estimate. राइट. फेयर वैल्यू प्रेजेंटेशन, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते हैं. आपको एग्जांपल देना आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, देवांशु, विल यू टेल मी द नेक्स्ट वन. व्हाट एल्स विल यू इवैल्यूएट स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में? Financial statement provide adequate disclosure of information provided by information presented is reliable, relevant, comparable, and understandable, or terminology used in financial statement is appropriate or not. हाँ, सो बेसिकली यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल थ्री ऑफ देम रिमेनिंग. सबका काम आसान कर दिया. सो बेसिकली आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है मैनेजमेंट, वेदर दैट इज RRC&U, रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. द इंफॉर्मेशन presented in financial statement by management is relevant, reliable, comparable and understandable. ठीक है. Then what did you say? The जो disclosure दे रहा है वो that will enable the users of financial statement to understand the effect of material transaction and events on the information conveyed on the financial statement. इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. You have to see the adequate disclosures are given in financial statement to enable the users of financial statement understand the effect of transactions or events. What was the last one? आपने जो लास्ट वन क्या बोला था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्मिनोलॉजी यूज की है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टाइटल यूज करते हैं, आपको मालूम है ना कि देयर इज अ सर्टेन वे इन विच यू शुड राइट. बैलेंस शीट का भी एक टाइटल सर्टेन वे में लिखना पड़ता है आपको. एज एट व्हाट डेट. P&L के लिए भी आपको लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड. सो आप कहीं भी एज एट, कहीं भी एज ऑन यूज नहीं कर सकते हो. राइट. सो द टर्मिनोलॉजी यूज्ड in financial statement, including the title of financial statement, is appropriate. So पूरा का पूरा जो ऑडिट करना है इसके पहले जो आप सीख कर आए हो वो करना ही करना है. बट उसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्पेसिफिक ये आपको इवैल्यूएशन करने होते हैं. राइट. So these are the 7 points. Even if you learn some good 4
4 points, that's it. You will get full marks. So you choose whatever you want to remember for a long time. मैम हम्म। सेकंड पॉइंट एक बार रीड कर दीजिए. पॉलिसी सिलेक्टेड and applied are consistent Appear- with the AFRF and are appropriate. जो policies जो है AFRF के हिसाब से जो सेलेक्ट किए हैं मैनेजमेंट ने, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, हमको वो चेक करना है. डन विश्वेश, क्लियर दीज पॉइंट्स? इजी. Ma'am, can you explain second last point once? द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज कि जो भी डिस्क्लोजर्स दिए हैं, नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में सारे डिस्क्लोजर जाते हैं एंटिटी के, ठीक है. सो एनी डिस्क्लोजर, वो चाहिए रिलेटेड पार्टी का हो, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का हो, डेटर्स का हो, क्रेडिटर्स का हो, वो शेड्यूल्स वगैरह जो आप बनाते हो, एजिंग शेड्यूल एंड ऑल दीज डिस्क्लोजर्स दैट आर गिवन बाय द एंटिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उनके शेयर होल्डर्स को या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसके समझने के लिए बराबर है कि भाई इवेंट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, राइट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा किस हिसाब से बनना चाहिए कि जो भी वो व्यक्ति रीड करे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो समझ पाए कि अच्छा ये हुआ था क्या एंटिटी में. सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस और इवेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह से डिस्क्लोजर्स होने चाहिए. क्लियर? Shall we move guys? थोड़ा आगे बढ़ेंगे. हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत बार आया है. क्वेश्चन इज इजी. आप देखो आपके नोट्स में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऑन द एडवाइस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. क्वेश्चन क्या है? The auditor shall evaluate whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the requirement of AFRF. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspect of entity accounting practices. Entity के accounting practices के बारे में कुछ quality related aspects होते हैं जो आपको consider करने पड़ते हैं, including कि क्या management ने अपने judgment लगाने के time पे कोई biasness रखा है क्या, मैनेजमेंट बायस है क्या, आपको ये भी चेक करना पड़ता है. मतलब मैनेजमेंट की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसका क्वालिटी देखो, मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन लेता है, क्या वो बायसनेस के साथ में डिसीजन लेता है. वो बायसनेस के साथ में डिसीजन क्यों लगे? क्योंकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखानी होगी, राइट. Like one of the reason could be that. So discuss stating clearly the qualitative aspects of the entity's accounting practices. क्या होती है qualitative aspect? मिला आपको ये क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एवरीबॉडी इन योर कंटेंट? कौन कौन से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की ये देख सकते हो आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? तीन पॉइंट है इसमें, तीन 4 होने चाहिए ना. चार 540 हैं, चार एक हैं। चार 260 वाला डिस्कशन होगा, एक 540 वाला एक डिस्कशन नंबर होगा, ऑफ राइट. जजमेंट है. हाँ Yes. हाँ. और पॉसिबल मैनेजमेंट बायस वाला में मैनेजमेंट जजमेंट करेक्ट.
ठीक है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, आपको ये जो करके कि किसी भी एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या देखोगे, देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सिर्फ इतना देख, जहां जहां मैनेजमेंट को अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, आर दे अप्लाइंग देयर ब्रेन प्रॉपरली और नॉट, or are they purposefully making such kind of judgment that is ultimately going to deceive the users of financial statement। किसी ना किसी की आंखों में धूल झोंकने वाला काम कर रही है क्या मैनेजमेंट, आपको वही देखना पड़ता है। सो दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपको क्या देखना है, पहला कि मैनेजमेंट जो भी जजमेंट बना ले रही है, मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट, इसके बारे में, अबाउट amount and disclosure in the financial statement. This is something you have to evaluate. जब भी आप देखते हो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ बना है या नहीं बना है, सो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर अबाउट द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट मेक रिगार्डिंग एनी अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो इवेल्युएट करना। देन व्हेन यू आर स्टडिंग एसे 260, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट ही ये था। आप लोगों ने कल कल ऐसा कुछ पढ़ा था अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ वाज रिगार्डिंग द हाउ यू significant फील। difficulty in accounting practices. एकदम गलत जवाब। Significant qualitative aspects about the accounting हाँ हाँ practices, हाँ। accounting एग्जैक्टली। 3.2 ठीक है, ना? सो व्हाट यू फील अबाउट, आपको अपना व्यू देना था, राइट? व्हाट वाज दैट पॉइंट ऐसे 260, गो बैक, एवरीबॉडी गो बैक एंड ऐसे 260 एंड फाइंड दिस पॉइंट इन योर नोट्स वेयर ऑडिटर्स हैज टू गिव हिज पर्सपेक्टिव, हिज व्यू अबाउट द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एज पर ऐसे 260 में। ये सिग्निफिकेंट मैटर्स आप डिस्कस जब करोगे मैनेजमेंट के साथ में, टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, तो उसका एक अंदर ये पॉइंट था कि आपके क्या व्यूज है, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मिला? यस, नो गाइस, गॉट दैट पॉइंट? हाँ, एंटिटी के accounting Yes, practices, Steve. including accounting policies, accounting estimates, और वो सब Yes. and finance. सो एग्जैक्टली वही पॉइंट आपको लिखना है कि हम व्हेन वी इवैल्यूएट की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सो वी हैव टू सी द दैट ऐसे 260 आल्सो कंटेन्स द डिस्कशन विथ TCWG regarding qualitative aspect of accounting practices। फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ था ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आपकी क्या व्यूज है, विचारधारा है उसके बारे में। नाउ जब आप ये इवैल्यूएशन करोगे कि मैनेजमेंट जो जजमेंट्स ले रहा है उसके बारे में, जब आपने इवैल्यूएट किया कि यार अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में मैनेजमेंट ना कुछ बायस रख रहा है यार, so what is going to be the next step for you whenever you see management is making biases while they are like they are making any judgment, they have a certain bias। सो आप इवेल्युएट करना कि उस बायसनेस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब व्हाट कैन बी द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? एंड उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को टुगेदर विद द, जो आपने ऐसे 450 में देखा था लास्ट क्लास में, कुछ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स रह गए थे, सो टुगेदर विद दैट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आप देखो कि क्या ये मैनेजमेंट के बायसेस प्लस जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है, इनका टुगेदर जो इफेक्ट है, वेदर इट इज कॉजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड।
क्योंकि अगर ऐसा होगा, सी व्हाई यू हैव टू इवैल्यूएट ऑल ऑफ दैट, मैं बोलती हूँ कि हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, विच इज ऐसे 700 योर ऑडिट ओपिनियन। सो ऑडिट ओपिनियन के टाइम पे आपको जो पहले मिस स्टेटमेंट मिले वो तो है अपनी जगह, प्लस उसके अलावा आपको पता चल रहा है कि मैनेजमेंट के बायसेस भी है व्हेन दे आर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो यू हैव टू सबको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उसका इफेक्ट देखो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हाँ तो देन आप आगे जाकर के इसकी वजह से आपको ओपिनियन, ओके निकिता, उसकी वजह से आपको आपका ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई करना पड़ सकता है, राइट। सो व्हेन कंसीडरिंग द qualitative aspect of entities accounting practices, auditor may become aware of possible bias in management's judgment. ठीक है। सो अगर आपको इफ यू बिकम अवेयर ऑफ दिस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑडिटर shall consider the effect of lack of neutrality, कि मैनेजमेंट बायस था मतलब मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं था, तो मैनेज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी along with uncorrected misstatements. Effect of lack of neutrality along with misstatement in the auditor's opinion, कि आपके ओपिनियन में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, यू हैव टू इवैल्यूएट दैट। नाउ इन योर सिलेबस एट सीए इंटर लेवल यू डू नॉट हैव एसए 540, बट आर यू अवेयर एसए 540 किसके बारे में है? तो ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम बोल रहे हैं ना, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से ना एंटिटी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल सकता है, एंड मैनेजमेंट कैन पर्पसफुली डू दैट। बायसनेस की वजह से वो ऐसा कर सकती है कि दे कैन शो अ लॉट ऑफ लाइक अप्स एंड डाउन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज दे आर बायस्ड व्हाइल मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो इसके लिए आईसीआई ने क्या बोला, बॉस रिस्क ही नहीं लेने का, लेट्स मेक अ न्यू स्टैंडर्ड, लेट्स मेक अनदर स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि अगर एंटिटी ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं, सो एज एन ऑडिटर हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे टुवर्ड्स दोस अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है। सो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि ऐसे 540 addresses the possibility of management bias in making accounting estimates. ठीक है। So I think this much for you is enough for writing this answer, accounting estimates wala. I wanted to take one more question. Question number 13, I guess. Done, everybody? याद रखोगे ये तीनों चारों पॉइंट्स? ठीक है। कम टू क्वेश्चन 13। मैम 1 सेकंड, सॉल्यूशन दिखाना 1 सेकंड पहले वाले पर। हाँ, एक बार थर्ड पॉइंट थोड़ा लर्न टाइप करा दोगे क्या? हाँ, देख थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपको पता चल गया कि मैनेजमेंट बायस था तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे ना कि उसका इफेक्ट हमारे ऑडिट ओपिनियन में क्या आएगा। अगर वो बायस निकला
और मैनेजमेंट की बायस होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट मिल गए, तो हम देखेंगे ना कि हमको भाई क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, एडवर्स ओपिनियन देना है, क्या देना है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक ही एडिशन लास्ट में और हो गया कि मैनेजमेंट बायस भी था, प्लस ऑलरेडी हमको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके मिस स्टेटमेंट्स मिले थे। तो वो जो अनकरेक्टेड, मतलब देखो आपने कल 440 की 450 किया था क्या हमारे साथ में कल क्लास में? नहीं। तो जब भी मैनेजमेंट को मिसेस जब भी ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिलते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वो ये देखने का, वो जाके बात करेगा मैनेजमेंट को, बोलेगा मैनेजमेंट ये ठीक करो। मैनेजमेंट बोलेगा अरे छोड़ो ना सर, कहाँ ये जबरदस्ती पड़े रहते हो, चलो आप 5 गलतियां लेकर आए हो, मैं 2 ठीक करके दूंगा, 3 रहने देते हैं। तो 2 करेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो जाएंगे, 3 अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाएंगे। अभी जो 3 अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, आपको देखना पड़ेगा बहुत से मटेरियल है क्या, और इसका इफेक्ट मेरे ऑडिट ओपिनियन में क्या आने वाला है। तो वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस ये जो मैनेजमेंट का बायसनेस आपको मिला है अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में, इनको मिला करके देखना कि भाई इसका अल्टीमेट इफेक्ट मेरे ऑडिट ओपिनियन में क्या आने वाला है। दैट्स पॉइंट 3। हाँ, एक बार ये बायस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट मतलब क्या कहना चाहते हो आप एग्जैक्टली? कि अगर आपको किस चीज पता पे चला है कि बायस? मैनेजमेंट बायस है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको डेप्रिसिएशन के लिए क्या लेना था, ही वांट डेप्रिसिएशन के लिए यू हैव टू टेक द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट के बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। तो वो जो यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट उसने लिया हुआ है ना, वो पर्पसफुली उसने ज्यादा बढ़ा के ले लिया है ताकि डेप्रिसिएशन, ये सॉरी, यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट उसको सपोज 10 ईयर्स कंसीडर करनी थी, मैनेजमेंट ने 5 साल ही किया। क्यों किया? ताकि वो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा तो उससे क्या फायदा होगा? उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, खर्चा ज्यादा इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज टेकिंग, मैनेजमेंट जानबूझ के अपने हिसाब से बायस हो रहा है जब वो जजमेंट लेता है, और वो सोच रहा है कि भाई ऑडिटर को क्या पता चलेगा, ऑडिटर को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हमको लगता है कि 5 साल में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, राइट? सो दे आर जानबूझ के मैनिपुलेटिंग विद दोस नंबर्स। डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? द ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर क्या करता है, द ऑडिटर शेल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द AFRF। कैन somebody tell me the objective of an auditor as per SA 200? To obtain a reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement or not, due to fraud and error, and whether it is prepared in all material aspects as per In accordance with in accordance with the applicable FRF, and when such when the such activity is conducted to give an opinion। ये वाला एक लाइन होता है ना, when such an activity is conducted। कुछ तो गड़बड़ कर रही हो उसमें, वापस एक बार चेक करो। एक्सप्रेशन ओपिनियन लास्ट में मेन, वही ओपिनियन वाला पॉइंट बोलना चाह रहा था मैं। बट एग्जैक्टली लाइंस क्या है उसके? एग्जैक्टली लाइंस क्या है? To report on the financial statement and communicate हाँ, as required by the SS in accordance with the auditor's finding। ठीक है, to report so on financial जब आप statement। स्टार्ट अभी what you have given is a correct answer। so ऐसे 200 में बोला गया है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है, कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि he shall obtain reasonable assurance कि financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, ताकि आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। तो उसी का पॉइंट लेकर के उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो जब आप ओपिनियन बनाते हो तो आप देखते हो कि इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने होने चाहिए एज पर AFRF। मतलब आप क्या चेक करने वाले हो व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन? आपके ना ऐसे ऐसे 700 की कंटेंट में स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक मिलेगा। Messrs S and Associates are the stat auditor of Real Limited, a company engaged in the business of manufacturing of garment. Auditor has completed the audit and in the process of forming an opinion on the financial statement for the financial year. CAK, the engagement partner, wants to conclude that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, what factor he should consider to reach at the conclusion. Whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. Whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, yes.
Then second, whether uncorrected material misstatements. as per ऐसे 450, you see, आपको पहले देखना, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जब भी आपको ये कंक्लूजन पे पहुंचना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो आपको देखना पड़ेगा जो ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन की है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है क्या, ये बोलने के लिए कि हाँ बॉस हमको कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। प्लस जो भी मिस स्टेटमेंट्स मिले थे उसमें से जो अनकरेक्टेड वाले रह गए हैं उसका इफेक्ट मटेरियल नहीं है, राइट? So how do you write this answer while forming an opinion? Auditor shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with AFRF। और ये ओपिनियन लिखने के लिए टू फॉर्म दिस ओपिनियन ऑडिटर नीड्स टू कंक्लूड, ऑडिटर को कंक्लूड करना पड़ेगा क्या, एज टू वेदर ही हैज obtained रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? दैट financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error, right? So if you know the objective of essay 200 well, you can already start this answer really nicely, right? ये पूरा ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ है, सिर्फ ये है कि ऊपर वाला लाइन नीचे, नीचे वाला लाइन ऊपर कर दिया है उसमें, राइट? This is exactly your मैम essay. डायरेक्टली ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ये लिख देंगे ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड जब भी आप ये कंक्लूजन लोगे, राइट, व्हेन यू आर मेकिंग दिस कंक्लूजन, सो while making the above conclusion, auditor shall take into account। जब आप ये कंक्लूजन लिख रहे होगे तो आपको दो चीजें कंसिडर करनी है, क्या? In your conclusion, whether you have obtained sufficient and appropriate audit evidences as per ऐसे what, which standard के, कौन से स्टैंडर्ड ने बोला था कि आपको sufficient and appropriate audit evidence obtain करना है? 90% बच्चे गलती करेंगे। मैंने आपको एक छोटू सा फ्लो चार्ट सिखाया था, FAP RAP वाला। FAP में आप सब्सटेंटिव, हाँ 400 की सीरीज बोलते हैं ना कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ऐसे 400 की सीरीज। 400 का सीरीज है भी क्या? 400 का कौन सा सीरीज आता? 330। 501। देखो 500 के सीरीज में हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने को बोलता कौन है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है? 315। ऐसे नहीं, ऐसे 330 इज द स्टैंडर्ड विच एक्चुअली टेल्स यू कि दैट यू हैव टू अप्लाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी स्पेशली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब आप लगाओगे तो यू हैव टू डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल करोगे एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, और ये सब कहानी करके आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, एंड तब जाके आपका 500 सीरीज स्टार्ट होता है, ठीक है? सो इट इज the auditors, while you make this conclusion, auditor shall take into account क्या, whether sufficient and appropriate audit evidence is obtained। याद आएगा तो लिखना as per SA 330, and whether uncorrected misstatements are
मटेरियल इंडिविजुअली, कोई गलती अकेले हो या फिर टुगेदर विद अदर, इंडिविजुअली और इन अग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट्स, राइट। तो जब भी आप कंक्लूजन बनाओगे तो आपको कंक्लूजन ये देना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। लेकिन ये कब बोल पाओगे? जब आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन किए हैं और जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल नहीं है। Done, everybody? Come to question number 15. Devanshu, read this question for me. The auditor's report shall include section directly following the opinion section with the heading basis of for opinion. Explain what is included in the basis of opinion section. सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी ऑडिट रिपोर्ट में आप ओपिनियन सेक्शन डालते हो तो उसी को फॉलो करते हुए एक दूसरा सेक्शन डालते हो जिसका नाम होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या इंक्लूड करते हो? बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या इंक्लूड करते हैं? मैम जो ऑडिट हुआ है वो ऐसे इसके बेसिस पे हुआ है कि नहीं हुआ? करेक्ट। द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall include a section directly following the opinion section with the heading basis of opinion. So as an auditor मैम ये हम वाला बताएंगे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्या, बेसिस ऑफ ओपिनियन वाला, दोनों ही व्हाट इट शुड ओपिनियन इंक्लूड और नॉट? कि ओपिनियन पैरा में क्या आना चाहिए, बेसिस ऑफ ओपिनियन, इसका आई थिंक आजू बाजू में है दोनों ये क्वेश्चंस, राइट। आई थिंक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आध क्वेश्चन ना कभी आ जाता है, इसलिए आई एम कंसिडरिंग दैट। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाएगा, ओपिनियन का बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या आता है। मैम ड्राफ्ट करने आता है क्या? हाँ, एक्चुअली सीए फाइनल लेवल पे ज्यादा आता है। वंस इन अ वाइल आप लोगों को शायद ना ओपिनियन भी ड्राफ्ट करने के लिए दिया जाता है, मतलब इतना मैम बुक में रेगुलरली नहीं क्वेश्चन है होता। इसमें दे रखा है मैम, बुक में बुक में है तो क्वेश्चन ड्राफ्ट करने के लिए मॉड्यूल में। नहीं, बुक में इलस्ट्रेशन 4। होगा लेकिन एग्जाम में उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। आपको चाहिए तो मैं प्यारा ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगी, लाइक विल टेक लास्ट वाले डे पे ना हम ये कंसिडर कर लेंगे। बट एक्चुअली ना ये सीए फाइनल पे रेगुलरली आता है कोई ना कोई पैरा ओपिनियन कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करने के लिए, की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, लेकिन आपके लेवल पे उतना फ्रीक्वेंटली आता नहीं है। विल टेक इन टू कंसिडरेशन, चलेगा। एक बार 700 का सीरीज निपट जाए, विल ऑल्सो सी की ओपिनियन पैरा में आता कैसे है, एंड आई विल गिव यू। एक्चुअली क्या है, ऐसे ही क्या करता है ना, आपके पैरा में भी दिया हुआ है और ना ऑडिट गाइडेंस रिलीज करता है एक्चुअली आईसीआई, उसके अंदर भी ना जितने भी डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस होते हैं, की ऑडिट मैटर पैरा होता है, जो आपके 800 सीरीज 2400 सीरीज के स्टैंडर्ड है, उस सबके ईओएम ओपिनियन पैरा, कैसे लिखने हैं। हाँ, ईओएम और ओएम पैरा।
यूएम पैराक्ल 800 सीरीज बोल रही हूँ मैं, मतलब जहां पर आप एसआरएस वगैरह ये सब जो करते हो ना, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसके भी ओपिनियन कैसे लिखने हैं, ऑडिटर आईसीआई ने उसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में आप बताते हो कि भाई देखो, ओपिनियन पैरा में आप क्या बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, और वी आर एक्सप्रेसिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और वी आर एक्सप्रेसिंग एडवर्स ओपिनियन, और वी डू नॉट एक्सप्रेस। डिस्क्लोमर जब देते हो तो आप लिखते हो कि वी डू नॉट एक्सप्रेस, ऐसा नहीं लिखते हो वी आर एक्सप्रेसिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, नो नो। डिस्क्लेमर का मतलब ही होता है कि आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो आप लिखोगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा फिर आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो। पहला आपको बोलना पड़ेगा कि स्टेट that audit was conducted in accordance with S। ठीक है। प्लस when you do an audit you have certain responsibilities towards the audit, ठीक है। ऐसे 200 स्पीक्स अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब आप ऑडिट करते हो। सो क्या होता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ्स होते हैं, एक पैराग्राफ होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक पैराग्राफ होता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सब आएगा ना कि ही विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF, देन ही शैल डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल्स। लेकिन वैसे अपने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आप उसमें ना क्रॉस रेफरेंसिंग देना, यू हैव टू रिफर टू दैट पैरा कि देखो मैंने अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए एज पर एसएस, मैंने वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में लिखा हुआ है, ये इसके तरफ सिर्फ इशारा करना। सो यू हैव टू रिफर टू द सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट दैट describes the auditor's responsibilities under the standards of auditing। ठीक है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने SQC 1 में भी पढ़ा था, ऐसे 220 में भी पढ़ा था, ऐसे 210 में भी पढ़ा था, ethical requirements। independent। yes, that you are complying with the ethical requirements including independence। ये आपको लिख के बताना पड़ता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। सो यू विल इंक्लूड स्टेटमेंट क्या, दैट द ऑडिटर is independent of the entity and he has fulfilled other ethical requirements। एंड इन योर स्टेटमेंट यू शैल ऑल्सो रेफर कि आपने जो एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया है वो कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई के हिसाब से किया है। द स्टेटमेंट शैल refer to code of ethics issued by ICAI। ठीक है। एंड आपको लास्ट में ना बेसिस ऑफ ओपिनियन के सबसे लास्ट में ऐसा लिखा रहता है कि वी बिलीव कि हम जो भी ओपिनियन दे रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा की है। हमको लगता है, मतलब आपको क्या लगता है वो बात की बात है, बट हम बोल रहे हैं कि हमने जो ओपिनियन पैराग्राफ में ओपिनियन दिया है उसके रिगार्डिंग वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है। सो यू विल इंक्लूड स्टेट वेदर द ऑडिटर believes that the audit evidence that the auditor has obtained
is sufficient and appropriate. किस लिए? To provide the basis for ये जो हम ओपिनियन दे रहे हैं इसके लिए हमने जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किए हैं वो सब सही बेसिस है, सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट बेसिस है. In case of there is any non-disclosure or something, if there is any misstatement regarding any amount, that also should be included in this basis for opinion, right? हाँ. सो ये तो क्या हो गया, दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर सेइंग कि भाई मेरे बेसिस ऑफ ओपिनियन में ये चीज. लेकिन बेसिकली वट एवर द ओपिनियन यू आर गिविंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या ओपिनियन दिया था, यहाँ पर दैट फाइनेंशियल ओके यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं था, बट व्हाट यू आर इंक्लूडिंग, बट यू ऑल्सो हैव टू इंक्लूड द मेन थिंग, मेन स्टफ दैट अगर इफ यू आर गिविंग अ क्लीन रिपोर्ट then what is the reason that you are giving the clean report. If you are giving a modified opinion, तो then you have to give the reason कि भाई क्या मिस स्टेटमेंट हुआ था, क्या डिस्क्लोजर था, whatever is the reason, but that you can write in your own language, that is allowed in the basis of opinion. ठीक है? Done. Now I wanted to take what question is this? Question number 15 हो गया ना? मैंने मेरे लिस्ट में क्या डाला था? क्वेश्चन नंबर 15 क्या डाला? क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा ऐसे 200 700 को डिच करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन तो हमने निपटाया है. आई वांट टू डू क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन अपने पास में, रुको लेट मी सी. कम टू क्वेश्चन नंबर 705. सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, स्टैंडर्ड 705 क्वेश्चन नंबर 35. What standard are we doing now? We are doing modifications in the opinion of the independent auditor's report. Meera, will you read the question? CA Guru is the process of preparing the final audit report
of JPA Private Limited and would like to disclaim his opinion on the financial statement due to any inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. House CA Guru shall amend the description of the auditor's responsibility as required by SA 700. सो अभी जब अपन 700 पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि वहां पर हमने को क्या इंक्लूड करना पड़ता है, याद है? वहां पर एक पैरा था जिसपे आपने लिखा था यू हैव टू रिफर बैक टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक रेफरेंस दे रहे थे, मतलब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा आता है। तो जब अब एक स्टेप आगे आओ और अब आप गुस्सा हो गए एंटिटी से और यू आर लाइक नो नो आई एम गोइंग टू डिस्क्लेम, मुझे मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, मैं किस हिसाब से ओपिनियन दूं भाई? सो आई एम गोइंग टू डिस्क्लेम फ्रॉम गिविंग द ओपिनियन, मतलब मैं ओपिनियन नहीं देने वाला हूं। सो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? प्रिया, हैव यू स्टडीड दिस चैप्टर बिफोर? वेयर इज विश्वेश एंड अदर गाइज? अभी? Am I here, ma'am? ओके ओके, प्रिया हैज नेटवर्क, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका स्क्रीन भी हैंग हो रहा था प्रिया। Rahul is here, Sumit is here. Who's KK? I still don't understand. What's your full name? 2 दिन से परेशान हूँ कि कौन है ये व्यक्ति। Devanshu, are you here? I don't see you. I can't see you. Guys, do you want 5 minutes break? Or shall we continue with 705? 705 करते फिर ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो थोड़े कंसेप्ट है ना वो लेवल ये होगा 701 एंड 706 एंड 710 का। सो ये वाला कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? मतलब हम ऐसे 500 यस मैम सीरीज लगा करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने जा रहे थे, बराबर? हाँ अथर्व, 705 हाँ मतलब वही हमने, डिस्क्लेमर की हम लोग ओपिनियन ओके ओके। तो कैंडी बेसिकली कैसी है उसके हम कुछ नहीं एग्जैक्टली सो मतलब आप ऑडिट एविडेंस लेने के लिए गए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, याद है आपको ऐसे 501 में जब आप इन्वेंट्री चेक करने के लिए गए थे और इन्वेंट्री चेक करने के लिए आपने क्या बोला था कि इट बिकेम इम्प्रैक्टिकेबल फॉर यू टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, तो क्या बोला गया था? यू डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन इन दैट केस, आपको वहां पर क्वालिफिकेशन या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। सो जब आप डिस्क्लेमर देते हो उसका मतलब होता है कि आप ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो। सवाल ये नहीं है कि डिस्क्लेमर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछा ये है कि अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो आपको ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? देखो मैं आपको बताती हूँ क्या रहता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में, क्या बोला जाता है आपको। हमारी जिम्मेदारी क्या होती है ऑडिट के टाइम पे कि हम जब ऑडिट करेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है? हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया भी, फिर भी हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह से हमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ रहा है। तो अब बिकॉज हमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ रहा है तो हम जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके वहां लिखेंगे कि देखो हमारी जिम्मेदारी थी जब ऑडिट करेंगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करेंगे एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। बट बिकॉज ऑफ द मैटर्स, हमने ओपिनियन पैराग्राफ में आपको बताया है कि ऐसे ऐसे कांड होने की वजह से हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। सो यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन की भाई हमने ऊपर बताया है आपको कि हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, इसकी वजह से हम ओपिनियन नहीं देंगे और हम ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में जाके बताएंगे कि देखो जो हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में लिखा हुआ है ना, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, उस पैरा में हमने बताया है कि हम कोशिश कर रहे थे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की, बट हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। So that is why we were not able to conduct we were not able to give any opinion on this matter, मतलब express any opinion, इसकी वजह से हमको डिस्क्लेम करना पड़ रहा है। ठीक है, समझा आपको हुआ क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। हाँ तो ऑडिटर्स
कि वो अपन ने सारे ऐसे फॉलो किए ऑडिटर ने। हाँ, सो आपका ना ऑडिटर रिपोर्ट में ना, ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा होता है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी रहती है, और मेनली ये लिखा रहता है कि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करेगा, एंड सब स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करेगा। ठीक है, अब उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम ऑडिटर उसमें ना एक उसको ना एक बार चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं पहले लिखती हूँ फिर मैं समझाती हूँ, रुको, वरना आपको समझेगा नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। आपको क्वेश्चन तो भी समझा क्या? मैम जो अभी हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन में 4 लाइनें लिखी थी, लगभग हाँ सेम ही इसमें भी लिखनी है ऐसी, मतलब समझ से आ रही है कि जैसे कि हमें ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट मिले या नहीं मिले, वो भी इसमें लिखना है हमें। हाँ, बट हमको नहीं मिले ना, तो वहां पर ये नहीं लिखना पड़ेगा कि हमको नहीं मिले, हमको ये लिखना पड़ेगा कि बिकॉज हमको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, इसकी वजह से हमको डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इतना चेंज करना पड़ेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली आपका अंडरस्टैंडिंग बराबर है, लेकिन अभी हमको तो नहीं मिले ना, इसके लिए तो अपन ने बेसिस ओपिनियन पैरा में बोला कि हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, और बेसिस ऑफ ओपिनियन में बोला कि क्यों हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में भी यही बोल देंगे कि भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि एसएस को फॉलो करके एविडेंस निकालने का, हमको अब नहीं मिले एविडेंस, इसकी वजह से हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। तो तीन जगह ऐसा, दो तीन जगह आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट? ऑडिटर shall amend the auditor's responsibility para as per ऐसे 700। सो एज पर ऐसे 700 को फॉलो करके आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में डाला था उसमें अमेंडमेंट करोगे, एंड ऑडिटर शेल इंक्लूड फॉलोइंग। आप इंक्लूड करना उसमें पहला, ठीक, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखना दैट ऑडिटर्स responsibility is to conduct an audit of the entity's financial statement as per standards on auditing, ठीक है, and to issue the audit report। यही थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको एक और स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, हाउएवर, आपकी जिम्मेदारी तो थी, बट हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर्स, कहाँ डिस्क्राइब किए होंगे आपने वो मैटर्स? मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन basis of disclaimer of opinion। अभी सुनो, ये चीज ना ऐसे टापो मत, मेरी बात सुनो यहाँ पर। जब भी आप ओपिनियन देते हो, ठीक है, ओपिनियन कितने टाइप के दे सकते हो आप? अनमॉडिफाइड, 3 टाइप के। 4 टाइप तीन टाइप, चार और टाइप के, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, एडवर्स। क्वालिफाइड, एडवर्स, एडवर्स, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। ठीक है। तो जब आप पैरा लिखोगे ना, आप एक तो होगा आपका ओपिनियन पैरा, तो ओपिनियन पैरा ऐसे लिखोगे। तो आप जब ओपिनियन पैरा लिखोगे तो ओपिनियन पैरा के नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा। लेकिन जब आप बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा लिखोगे ना, तो उसका हेडिंग कैसे देना? जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आप बेसिस ऑफ ओपिनियन लिख दो हेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वालिफाइड ओपिनियन होता है तो आपको लिखना पड़ता है, हेडिंग कैसे देनी पड़ेगी पैराग्राफ की? बेसिस ऑफ क्वालिफाइड क्वालिफाइड।
जब आप एडवर्स ओपिनियन लिखोगे तो आपका हेडिंग हो जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। जब आप डिस्क्लेमर लिखोगे तो आप लिखोगे बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है। सो इन दिस केस हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो हम हेडिंग में क्या लिखेंगे, disclaimer of opinion. So because of the matters described in the disclaimer of opinion, auditor was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide the basis for an audit opinion on the financial statement. And फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में आपको क्या इंक्लूड करना पड़ता है, अबाउट योर that you are complying with the, you have conducted the audit, ethical requirements. ethical requirement, हाँ, you have complied with the ethical requirements, you are independent auditor, वो सब तो आपको वो भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट about the auditors independence and other ethical requirement as per SA 700। हालांकि इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है कुछ, लेकिन अमेंडमेंट बेसिकली पॉइंट बी था आपका। मैम एक बार मेरे को डाउट था इसमें, जैसे ये आपने चार बताया, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, मॉडिफाइड और डिस्क्लेमर वाला जो ओपिनियन होता है, एक बार इसमें क्लियर कट एक बार डिफरेंस बता दो बस कि हिंदी में डिफरेंस बता दो ताकि हम उसमें केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर पाए ऊपर ऊपर कि क्या लगाना है, सिर्फ एक वर्ड लिखकर। बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। जब भी एविडेंस नहीं मिलेगा, जब भी एविडेंस आपको नहीं मिला, ठीक है, तो दो चीजें होंगी, याद रखना कार्तिक। एविडेंस जब नहीं मिला तो उसका इफेक्ट देखना, क्या उसके इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा है क्या, या फिर सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट है। जैसे कि हो सकता है इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं मिला या डेट एक आध डेटर से रिलेटेड नहीं मिला, तो उसका इफेक्ट यदि इंडिविजुअल है तो आप क्या रिपोर्ट दोगे, आप क्वालिफाइड। लेकिन अगर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, या फिर वो सपोज इन्वेंट्री है लेकिन इन्वेंट्री पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो अगर इन्वेंट्री के रिलेटेड आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग गलत हो जाएगा, बराबर। तो उस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना। सो जब एविडेंस नहीं भी मिलता है ना, तो भी दो केस होते हैं। पहला केस होता है उसका इफेक्ट देखो कि क्या उसका इफेक्ट परवेजिव है, अगर नहीं तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना, और अगर परवेजिव है मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल या फिर मल्टीपल असर्शन को इफेक्ट कर रहा है, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना। ठीक है, तो उस गलती से होने वाला इफेक्ट क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। इफेक्ट कभी भी याद रखना, अगर मटेरियल एंड परवेजिव जैसे वर्ड है कि मटेरियल भी और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब बड़ी गलती है, संगीन जुर्म टाइप का, तो आप बोलना कि यहां पर मुझे डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। और सपोज आपको खाली अगर मटेरियल है तो, खाली अगर मटेरियल है तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। इसके लिए सेकंड वाला क्वालिफाइड ओपिनियन। ये कब बोला मैंने, जब आपको एविडेंस नहीं मिला कार्तिक, वो याद रखना। बट अगर आपको एविडेंस मिला, एविडेंस क्या मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, मतलब मिस स्टेटमेंट है, तो वो गड़बड़ कितना मटेरियल एंड परवेसिव है वापस देखना पड़ेगा। अब कार्तिक आप आंसर करो, आपको गड़बड़ मिला और वो जो गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिली, जो मिस स्टेटमेंट, वो मटेरियल एंड परवेसिव है,
या मटेरियल एंड परवेसिव नहीं है, तो क्या ओपिनियन दोगे? अगर नहीं होगा तो क्या ओपिनियन दोगे? अगर नहीं होगा तो क्वालिफाइड, ब्यूटिफुल। और अगर होगा और तो? अगर है तो एडवर्स, और अनमोडिफाइड मतलब सब क्लियर है। सब बराबर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फ्री है ना, गलती नहीं है ना, फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब ये पॉइंट क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में पता है क्या होता है कि हम बोल ही नहीं सकते ना भाई कि फ्री है मटेरियल, क्योंकि हमको गड़बड़ मिल रहा है वहां पर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पहले वाले केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है? यस, नो? ओके मैम, बड़ी यस, डन। come to a very important question. And could you show me the answer alone, ma'am? That just हाँ हाँ हाँ। ऐसे 701 किसने पढ़ा है पहले? ई ऑडिट मैम मैटर। पढ़ा है लेकिन भूल गया, बहुत बहुत दिन हो गए, अब Yes. रिवाइज करना है तभी। ठीक है, डिस्कस करते हैं, थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक्चुअली केएम का। केएम ना ऐसे को अच्छा लगता है, वो पूछ लेता है केएम के बारे में। गाइस मैं बोल रही हूँ, जो जो स्टैंडर्ड पे ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील होता है ना, मुझे बता दिया करो। आई विल गिव यू दैट माय वीडियो जहाँ पर मैंने ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लास में सॉल्व किए एंड एवरीथिंग। स्पेशली चैप्टर 8 के तो क्वेश्चंस मैंने किए हैं, 701, 705, 706 के सारे सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए हैं। तो उसका एक्सेस ले लो और बढ़िया बैठ करके प्रैक्टिस कर लिया करो, स्पेशली दोस पीपल हु आर अपेयरिंग जस्ट फॉर ग्रुप 2। अभी यू हैव ग्रुप 1 एग्जाम्स, नो? आज 7 तारीख है। yeah. व्हाट आर यू स्टिल डूइंग हियर? डन विथ अकाउंट्स? I hope so. अरे इसको बोलते हैं दिलेरी हिंदी में। व्हाट डू यू कॉल दिलेरी इन योर लैंग्वेज? हाउ डू यू प्रोनाउंस दिलेरी इन तमिल? करेजियस। करेजियस को क्या बोलते हो तुम वैसे? Something like assault also we will say. असॉल्ट नहीं रे, असॉल्ट कैसा? Assault means not ASSAULT, ma'am. अच्छा ओके। That is not the assault in Tamil means it's like a cool and ओह ओके। अच्छा ओके, सो असॉल्ट इज अ तमिल वर्ड यू सेड क्या? no, it's like a common, it's like what we have to say, ma'am. It's like colloquial language. It's not a official Tamil word, but while it's ओके, या कूल। हाँ समझा मुझे। So you may you are using this word as a slang, no? मतलब ऐसा कि yeah, it's dude, you are assaulting this, like you're assaulting your power, something like this, right? ऐसा power of being a good student, a talented student. चलो, कम टू दिस क्वेश्चन गाइस। एक इंपॉर्टेंट ऐसे 701 के दो क्वेश्चन निपटाने हैं मुझे, उससे हो सकता है आपका बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा 701 में। लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग, आई विल स्टार्ट अ न्यू वन।